پاکستان اور ترکی کے درمیان دہائیوں سے ارینجمنٹس موجود تھے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی۔ اس جمعے کو اس کی ایک اور ایکسٹینشن ہے کہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کا مقصد یہ ہے کہ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جائے۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کوئی ایگریشن ہو۔ مکہ المکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا۔ مکہ دفاعی معاہدے کا مقصد کسی کے خلاف جارحیت نہیں، یہ دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود معاہدے کا تسلسل ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ امت مسلمہ کے لیے تقویت کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو۔ سہ فریقی معاہدے کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا، کشمیر میں ہماری حکومت بنی تو ترقی کا دور دوبارہ شروع ہوگا، کشمیر میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا وطن عزیز سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کو مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی نے مکہ معاہدے پر اعتماد میں لینے پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی بھی ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی صورتحال، کثیر الجہتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الصباح کی بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ شیخ جراح جابر الصباح نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب دفاعی معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ معاہدہ خطے میں امریکہ کے لیے بدلتی سوچ کی علامت ہے۔ خطے کے ممالک جان گئے سیکیورٹی جھوٹے بروکروں سے خریدی جانے والی شے نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں عدم سلامتی کا سبب امریکہ ہے۔ خطے کے ممالک اپنی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی میڈیا بریفنگ، واضح کیا، امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ آبنۂ ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ معاہدے میں امریکہ شامل نہیں۔ عمان کے ساتھ معاہدہ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کا ضامن نہیں۔ کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہ ہو تو آبنۂ ہرمز کھل سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ محدود سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں، فوجی کارروائی کی بجائے تہران پر معاشی دباؤ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو انٹرویو، کہا ایران کے ساتھ لڑائی اور مذاکرات شطرنج کی طرح ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایران معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا، ایرانی حکومت کے پاس فوج اور ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایرانی عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ، 4 حلقوں میں پولنگ ہوئی۔ ضلع باغ کی 3 حویلی کی 1 نشست پر ووٹوں کی گنتی جاری، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ LA14 باغ 1 سے آزاد امیدوار ساجد اقبال عباسی آگے، اول جموں مسلم کانفرنس کے سردار عتیق خان پیچھے۔ LA15 باغ 2 میں پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء قمر، LA16 باغ 3 سے سردار قمر الزمان کو برتری حاصل۔ LA17 حویلی سے نون لیگ کے چودھری محسن عزیز آگے، پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور ووٹنگ کی دوڑ میں پیچھے ہیں۔ ادھر LA15 وسطی باغ کے الیکشن میں بد نظمی، بوائز مڈل سکول پولنگ سٹیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں ہاتھا پائی۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آج دوبارہ حسب سابق جو ہے وہ اپنی ہار کو، اپنی شکست کو جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش آج بھی جو ہے وہ جاری کی ہوئی ہے، لیکن آج کچھ ہلکی آنچ پہ ہے۔ آج پہلے جیسا جو ہے نا وہ جوش و جذبہ نہیں ہے۔ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان کی،
वही इंतखाबात होना कश्मीर में और लोगों का इतने बड़े तादाद में निकलना बहुत बड़ी कामयाबी है। वही कश्मीरी अवाम की भी कामयाबी है और स्टेट की भी कामयाबी है। नून लीग 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी का आज धांधली का इल्ज़ाम हल्की आंच पर है। पीपल्स पार्टी के दोस्त धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहे मगर सबूत नहीं दिए। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात चोर मचाए शोर के मुतरादिफ हैं। समझ नहीं आता आखिर इन्हें इल्ज़ामात से क्या हासिल होगा। आज हुकूमती वुज़रा का ढिठाई से कहना कि कश्मीर में पुरअमन तरीके से इंतखाब हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस इलेक्शन को पुरअमन तरीके से इलेक्शन कहना झूठ है और पुरअमन तरीके से अगर कुछ हो रहा है तो धांधली हो रही है। आप 12 सीटें तो जेब में रख के ही चले थे ना। राना सनाउल्लाह साहब बार बार आ रहे हैं आजकल, तो 12 सीटें तो आपकी जेब में ही थी। आपकी हुकूमत वैसे ही बन जाती। क्या जरूरत थी कि चौधरी यासीन की बिरादरी नहीं है? उससे पहले क्या वो बगैर बिरादरी के जीतते थे? क्या जावेद बढ़ानवी को बिरादरी की वजह से हराया गया? पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम धर दिया। नून लीग के इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। नून लीग को एक बार फिर पीपल्स पार्टी के पैरों में पड़ना पड़ेगा। आज जिस तरह वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। आपने कहा 12 सीटें जेब में हैं, वो जेब से ही निकली। नून लीग की उल्टी गिनती 17 या 20 से शुरू होगी, 100 से नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवशा खान कहती हैं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन हैं। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। नून लीगी वज़रा अपनी ही हुकूमत के पोल खोल रहे हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा, पंजाब में माजूर बच्ची के साथ सब इंस्पेक्टर ने ज्यादती की। इस मामले को रफा दफा कर दिया गया, किसी को पशीमानी नहीं हुई। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा एक ही केसेट चला देते हैं, कोई स्क्रिप्ट ही बदल लो। अज़म बुखारी का तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, हमें भाषण ना दें, अपने सूबे में काम करके दिखाएं। पंजाब में मर्जी का बोर्ड बनाकर हकाइक छुपाए नहीं जाते, लाशों की सियासत नहीं की जाती। कराची में नौजवान ताजिर के कत्ल को खुदकुशी बना दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पंजाब में इंतशार चाहते हैं। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में गफलत साबित। पुलिस चीफ ने डीएसपी शारा फैसल और एसएचओ गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया। एसएचओ गुलिस्तान जौहर की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली। एएसआई बना दिया गया। डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। मीर रजा के वरसा और वकील जबरान नासिर का तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार। वालिद मीर रजा ने कहा, उम्मीद है सच सामने आएगा। गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस के मुलाजमीन से क्या तहकीकात हुई बताया नहीं जा रहा। बेटे का बिजनेस पार्टनर भी गायब। गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज ताहाल सामने नहीं आई। आईजी सेन जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं, मीर रजा अली केस से मुताल्लिक कमेटी बनाई गई, वो अपना काम करेगी। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलत फहमियां पैदा हुई। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार खुशी के खिलाफ NCCIA से रुजू कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर और बेटे रावल मेमन के खिलाफ मुबैना झूठे इल्जामात पर शिकायत दर्ज करा दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म किरदार खुशी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। शिकायत में 4 फेसबुक अकाउंट्स और पेजेस का हवाला शामिल। की FBI इस्लाहात पर अमल दरामद मजीद तेज करने की हिदायत। इन लैंड रेवेन्यू के लिए मुजव्वज़ा फेसलेस निज़ाम की बरवक्त तकमील का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, कारोबारी बरादरी के टैक्स इस्लाहात पर बढ़ते एतमाद का खैर मकदम करते हैं। FBI मुकर्ररा रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इकदाम तेज करे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नटाली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। DFC समेत अमरीकी इदारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू।
पाक अमरीका तिजारत में इजाफे के लिए फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर तवज्जो दे रही है। अमरीकी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। नटाली बैकर ने पाकिस्तानी हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। हर घर के लिए साफ पानी की फराहमी, वज़ीर आला मरीम नवाज का आज़म। पंजाब के मुंतखब अजला में पीने के साफ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मंसूबे के लिए साउथ सेंट्रल नॉर्थ पंजाब के 6 अजला का इंतखाब राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी और मरी में पाइप वाटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ्द की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताअवुन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कोरंगी में सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में ऑटिज्म से मुतासिर अफराद के लिए ये पहला खुसूसी रिहायशी मरकज़ है। बच्चों को निगहदाश्त, तरबियत और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सी आर्ट्स रेजिडेंशियल 250 ऑटिज्म से मुतासिर बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है। बानी पीटीआई की तबीयत नासाज, उनसे मुलाकात कराई जाए। फैमिली या वकला में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत से ज़्यादा इस वक्त कोई बात अहम नहीं। बानी के ज़ाती डॉक्टर्स को उन तक फौरी रसाई दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का टैक्स दहिंदगान के हक में बड़ा फैसला। 30 जून 2002 तक के टैक्स तखमीने नए जुर्मानों से महफूज। नए कानून से पुरानी टैक्स जिम्मेदारी बढ़ाने की कोशिश मुस्तरद। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए, माजी के टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ डालना गैर कानूनी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बजाय माहाना बुनियाद पर तय की जाएं। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हड़ताल जारी रहेगी।